اندر بہت ہی انٹرسٹنگ اس طرح گھر بنے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے سردی سے بچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے دروازے, اور سارا انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح اس زمانے میں یا اٹیک سے بچنے کے لیے انہوں نے پورا فورٹریس بنایا ہوا ہے, اور یہ تالاب بنایا ہے کہ یہاں اگر بند کرنا پڑے تو پانی کا, اور اندر مسجد ہے جس میں پری ہسٹورک سائنز ہیں, انہوں نے کارونگ ہوئی ہوئی ہے کوئی. اچھا مجھے بتائیں کہ کتنے ایئر اولڈ ہے یہ؟ یہ کتنے سال پرانا ہے, میں بھول گیا ہوں. 1000 سے 1400. میرا نام شبیر حسین ہے. میں یہاں کا اس فورٹ کا ٹور گائیڈ ہوں. چاہتا ہوں آپ اس میں ہماری ہیلپ کریں اور آپ ہمیں کچھ چیزیں بھی دکھائیں اور اس کی معلومات بھی بتائیں. ضرور, آپ تشریف لائیں. ہم اس کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی بتائیں گے, پھر اندر جو چیزیں ہیں ان کا ڈیٹیل بھی بتائیں گے ہم. تو چلیں آپ تشریف چلیں ہم ساجد بھائی آ جائیں آپ میرے ساتھ, اور ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دوستو پاکستان کا ایک ایسا پوائنٹ جو کہ 1000 سے 1400 سال تک پرانا ہے. ساجد بھائی ویو بھی آپ دکھاتے رہیے گا. اچھا شبیر صاحب, مجھے سب سے پہلے تو اس کا پورا نام بتائیں. اس گاؤں کا نام ہے گنش. اس کا جو وجہ تسمیہ ہے مقامی زبان میں جسے بروشسکی کہا جاتا ہے, بروشسکی زبان میں اس کے معنی بنتے ہیں وہ جگہ جہاں سے سونا نکلتا ہو, یعنی سونا نکلنے والی جگہ. اس کے بعد یہ گنش کے گن اور نش کو الگ الگ کر کے 2 الفاظ بنا کے ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ جگہ جہاں پہ کئی راستے آپس میں ملتے ہوں. تو گندش کے معنی بنتے ہیں وہ جگہ جہاں سے راستہ گزرتا ہو. چلیں جی, راستہ تو گزر رہا ہے تو چلتے ہیں شبیر صاحب کے ساتھ. یہ تھوڑا سا سلک روٹ کے بارے میں تھوڑا سا میں بتاؤں. اچھا چلیں شبیر صاحب. تو کیونکہ یہ آپ کے پاؤں کے نیچے کا یہ جو راستہ ہے یہ اینشنٹ سلک روٹ ہے, یعنی قدیم زمانوں میں جب پیدل ہندوستان سے چائنا تک ٹریڈ ہوا کرتا تھا تو قافلے اسی راستے سے گزرتے تھے. یہ سامنے سیڑھی کے پیچھے جو ایک کمرہ نظر آ رہا آپ کو تالا لگا ہوا, وہ یہاں کا کاروان سرائی ہوا کرتا تھا. اس کاروان سرائی میں آنے جانے والے تمام قافلے شام کے ٹائم جب پہنچ جاتے تھے تو اس میں سٹے کیا کرتے تھے. تو ان کے ساتھ جو گھوڑے خچر یا اونٹ وغیرہ ہوتے تھے وہ اس کارنر میں یہ جو کونا نظر آ رہا ہے یہاں پہ بندھے جاتے تھے. یہ 1000 سے 1400 سال قدیم گاؤں ہے. تو یہ ایک فورٹیفائڈ ولیج ہے. جدید الفاظ میں آپ کہتے ہیں نا گیٹڈ کمیونٹی. آج سے 1400 سال قبل لوگوں نے گیٹڈ کمیونٹی بنانے کی کوشش کی تھی. تو یہ جو جگہ کا انتخاب ہوا وہ اس لیے ہوا کہ اس کا بیک سے ایک دریا کی طرف کا جو حصہ تھا بالکل 90 ڈگریز پہ کھڑے دیوار کی طرح کچا کلف تھا, وہاں سے کسی کے لیے اندر گھسنا ممکن نہیں تھا, یعنی قدرتی طور پہ محفوظ تھا. فرنٹ سائڈ سے انہوں نے اونچی فصیل بنائی. اس فصیل کے ساتھ انہوں نے 14 واچ ٹاورز تعمیر کیے. یہ واچ ٹاورز بنکر کا کام دیتے تھے, مورچے کا کام دیتے تھے. تو ان واچ ٹاورز کے اندر بیٹھ کے سردی ہو یا گرمی ہو, بارش ہو یا دھوپ ہو, تمام تر موسمی حالات سے اپنے آپ کو بچا کے واچ ٹاور کے اندر محفوظ طریقے سے رہ کے دشمن کے اوپر نظر بھی رکھ سکتے تھے. خدا نخواستہ کوئی دشمن آ رہا ہو تو جو ہی وہ تیروں کے کارگر رینج میں پہنچ جاتا تھا, انہی واچ ٹاور سے ان کے اوپر تیروں کا حملہ کیا جاتا تھا, ان کو تیروں کا نشانہ بنایا جاتا تھا. یہ واچ ٹاور اس لیے وہ بنایا تھے. تو یہ جو گیٹ آپ کو نظر آ رہا یہ اس کا واحد انٹرسٹ تھا. پھر اندر جا کے گلیاں تقسیم ہوتی تھیں. یہ گیٹ شام کو جو ہی اندھیرا چھا جانا شروع ہوتا تھا, یعنی مغرب کے فوراً بعد یہ گیٹ بند ہو جاتا تھا. رات کو اس گیٹ کا کھولنا انتہائی ممنوع تھا, یعنی پورے گاؤں سے غداری کے مترادف سمجھا جاتا تھا. چلیں دوستو, تو ہم چلتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں 1000 سے 1400 سال پرانا دانش ہیریٹیج, جس میں ہم بتائیں گے کہ یہاں پر لوگ کیسے رہتے تھے. اوپر پہرے دار بیٹھے رہتے تھے اور یہ جا کے صبح ہی کھلتا تھا. رات کے وقت کھولنا پورے گاؤں سے غداری کے مترادف سمجھا جاتا تھا.
तो जनाब इस गांव के अंदर 7 छोटे छोटे कदीम मसाजिद भी हैं, इनके ऊपर बहुत खूबसूरत वुड कार्विंग की गई है। तो इसमें कुछ हिंदू मत की मोहतरम चीज़ें, बुत मत की कुछ मोहतरम चीज़ें, कुछ इटालियन, ग्रीक और चाइनीज़ निशानियाँ इसके ऊपर मौजूद हैं। आप अंदर जाके मैं चंद निशानियाँ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर साहब। हाँ, प्ले कर दें। ये आपको दिखा रहे हैं 1400 साल पुराना एक गांव, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1400 साल पहले लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, किस तरह की रहाइश होती थी, किस तरह के उनके मसाइल थे। ये सब जानेंगे। यहाँ के जो हैं टूर गाइड शबीर साहब हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कि शबीर साहब बताइएगा यहाँ की क्या खसूसियत है। ये एक मस्जिद है, तो ये एक मेमोरियल मस्जिद कह सकते हैं। तो ये इंसानी फितरत है, इंसान हमेशा से चाहता है कि किसी तरीक़े से मुआशरे में मरने के बाद भी उसका नाम ज़िंदा रहे। तो इस मकसद के लिए बड़े शहरों में लोग कोई मेमोरियल स्कूल, मेमोरियल कॉलेज या मेमोरियल हस्पताल वगैरह बनाते हैं। इसके ज़रिए उनकी कोशिश होती है कि मुआशरे में उनका नाम बाकी रहे, तो ताकि लोग उन्हें याद रखें। इस तरह का हरबा हमारे बुज़ुर्गों ने भी अपनाया। उन्होंने अपने नाम से एक छोटी सी मस्जिद बनाने का काम शुरू किया। जब वो फिर दूसरे कबाइल जो एक दूसरे से बहुत जेलसी रखते थे, जब एक बंदे को इस तरह का कोई काम करते हुए देखा तो सब ने कहा कि अरे अरे देखो फ़लाँ का नाम रहे और हमारा ना रहे, यह कैसे मुमकिन है। तो इस तरह सभी हजरात ने अपने नाम से एक छोटी सी मस्जिद बनाने का काम शुरू किया। इस तरह इस छोटे से गांव में लगभग 7 छोटे छोटे, उर्दू में कहते हैं ना 1.5 इंच की मस्जिद, तो वो उन्होंने 1.5 इंच की मस्जिदें बनाई। लेकिन इसके ऊपर जो कार्विंग है ये बहुत दिलचस्प है। इसमें कुछ हिंदू मत की मोहतरम चीज़ें भी हैं, कुछ बुत मत की मोहतरम चीज़ें भी हैं, कुछ इटालियन सोच भी है, कुछ ग्रीक भी है और कुछ चाइनीज़ साइंस इसके अंदर मौजूद हैं। तो मैं एक सिरे से एक एक करके थोड़ी सी निशानियां बताने की मैं कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें, ये यहाँ एक शिवास्तिका का निशान है। यह शिवास्तिका हिंदू मत में, बुत मत में, आखिर में नाजियों के पास भी यही मोहतरम निशानी थी। तो ये पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की निशानी समझा जाता है। तो हिटलर के मरने के बाद जर्मनी के झंडे से यह निशानी मिट गई। तो इस हद तक तो बहुत सारों को पता है, लेकिन इससे आगे बहुत कम लोगों को। किरत ज़बान के अंदर जो लफ्ज़ लिखा गया है वो लफ्ज़ ओम है। आप इंडियन चैनल्स पे सुनते हैं ओम शांति ओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ये वही लफ्ज़ ओम लिखा हुआ है। आगे कुछ छोटे छोटे फूल नज़र आ रहे हैं आपको। ये जो छोटे फूल हैं ये लोटस का जो फूल होता है उसकी निशानी है। लोटस का फूल बुत मत में इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता है। बुत मत बरादरी का अक़ीदा है कि जब महात्मा बुद्ध पैदा हो रहे थे, लोटस के पौधे ने अपने एक शाख को महात्मा बुद्ध के नीचे फैलाया जिसके ऊपर एक फूल था और महात्मा बुद्ध आइन उसी फूल के ऊपर पैदा हुए। बेअल्फाज़ दीगर इस तरह भी समझ सकते हैं कि लोटस के फूल ने एहतरामन महात्मा बुद्ध को ज़मीन की मट्टी लगने नहीं दिया बल्कि अपनी गोदी में उठाया। इसलिए बुत मत बरादरी इस फूल को इंतहाई मोहतरम और मुक़द्दस समझती है। ये एक राउंड फिगर है, ये एंटी क्लॉकवाइज है और उस तरफ वाला क्लॉकवाइज है। तो ये कोई फूल या कोई नक्शा नहीं बल्कि ये एक फार्मूला है जिसे फिबोनाची स्क्रिबल कहा जाता है। फिबोनाची इटली का एक इंतहाई मशहूर मारूफ रियाजीदान गुजरा है जिसका नाम फिबोनाची था। तो उसका ईजाद करदा फार्मूला है जिसे फिबोनाची सीक्वेंस भी कहा जाता है, गोल्डन सीक्वेंस भी कहते हैं। तो ये फार्मूला आज के दौर में भी जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट के अंदर ये फार्मूला आज भी इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ हिंदू बरादरी की एक और मोहतरम निशानी है, ये जो यू शेप निशान हिंदू साधु हजरात अपने माथे के ऊपर बनाते हैं। तो ये भी बना हुआ है, तो सफ़ेद रोशनाई से बनाते हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर दाखिल होते हुए या चर्च के अंदर दाखिल होते हुए दरवाज़े के साथ एक घंटी लटकाते हैं। हर दाखिल होने वाला वो घंटी बजा के अंदर दाखिल होता है। ये यहाँ पे एक घंटी की निशानी भी लगी है, ये इधर घंटी की निशानी भी है। उसके बाद
यहाँ ऊपर देखें काफ़ी सारे सनफ्लावर के फूल हैं। तो ये सनफ्लावर का जो फूल है ये सिकंदर आज़म के क्राउन की यानी कि ताज की निशानी समझा जाता है। जब सिकंदर आज़म गंदारा में दाखिल हुए तो उसका जो ताज बना हुआ था वो 9 पत्तों वाला सूरजमुखी का फूल बना हुआ था, इसलिए यह सूरजमुखी का फूल सिकंदर आज़म के क्राउन की निशानी समझा जाता है। आपको दे रहे हैं, ये आपको कभी नहीं सुनने को मिली होगी। तो हम स्पेशली अगेन शबीर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो हमें अपना कीमती वक्त दे रहे हैं और ये मौका दे रहे हैं कि ये जो वैल्यूएबल एसेट्स हैं ये हम आपको दिखा सकें। साथ ये आप गली का वो बनाते हैं। ये कदीम ज़मानों के घर इस तरह के हुआ करते थे, यानी पत्थर की दीवार, उसके ऊपर सादा गारे का प्लास्टर होता था, फिर छोटे छोटे दरवाजे, क्योंकि उस ज़माने में सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी। आज के दौर में भी अगर देखा जाए तो नवंबर दिसंबर के महीनों में जब खुश्क सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है तो -15 से 16 तक यहाँ टेम्परेचर गिर जाता है। तो अब जबकि ग्लेशियर्स मेल्ट होकर बहुत पीछे गए हैं, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये ग्लोबल वार्मिंग वाला एक झंझट भी है, इसके बावजूद -15 से 16 तक टेम्परेचर गिर जाता। अगर आज से 1400 साल पहले का सोचें तो ग्लेशियर्स बहुत आगे थे, आबादी बहुत महदूद थी, तो इस ज़माने में शायद कम से कम इस रीजन में -25 से 30 तक टेम्परेचर गिरता होगा। -25 आपको ये एहसास होना चाहिए कि जब सिफर होता है तो पानी जम जाता है। -25-30 टेम्परेचर हो और सही तरीके से तन पे कपड़ा ना हो, पाँव में जूता ना हो, इस तरह के बेसर सामानी के आलम में सर्वाइवल आसान नहीं था, ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने इस चैलेंज से निमटने के लिए उन्होंने इंसान किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ ज़रूर सोच लेता और कोई ना कोई हल ढूंढ निकालता है। तो उन्होंने सोचा कि भाई छोटे दरवाज़े बनाओ, अगरचि वो जिस्मानी तौर पे हमसे कहीं ज़्यादा जसीम कदावर लोग हुआ करते थे, लेकिन ये सर्दी से बचने के लिए उन्होंने छोटे दरवाज़े बनाए हैं। तो इस तरह के 3 कम से कम 2 वरना 3 दरवाज़ों से गुज़रने के बाद वो अपने रहायशी कमरे में पहुँचते थे। तो फर्स्ट एंट्रेंस में वो अपना मवेशी रखते थे, क्योंकि मवेशी गर्म होते हैं, तो दरवाज़े से दाखिल होने वाली सर्दी मवेशियों की हीट की वजह से ख़त्म हो जाती थी और अंदर मकीनों के लिए टेम्परेचर नॉर्मल रहता था। तो ये उन्होंने एक इंसुलेशन सिस्टम बनाया हुआ था। उस ज़माने का हर घर 2 मंजिला हुआ करता था। निचली मंजिल में वो कोई खिड़की या कोई सुराख बिल्कुल नहीं रखते थे, बल्कि छत के बीच में सिर्फ एक ही 1.5 फुट बाई 1.5 फुट कबीला आबाद था। और कितने लोगों की तादाद हुआ करती थी जो यहाँ पर रह सकते थे? तो कहा जाता है कि उस ज़माने में यहाँ पे कोई लगभग 250 से 300 घर आबाद थे, तो काफ़ी बड़ा गांव था। तो कबीला कौन सा था आबाद? कबीले यहाँ पे मुख्तलिफ़ कबाइल हैं। जो मेन एक जो यहाँ पे सबसे बड़ा कबीला है वो ईरानी नजात है, जिसे बर्चा कहलाता है। फिर दूसरे उनके फिर छोटे 3 सब ब्रांचेस हैं। उसके अलावा एक हमारे पास मंगोल कबीला भी है, थोड़े से घरानों पे मुश्तमिल। उसके बाद एक अफ़गान जो ये वाखान कॉरिडोर से यानी पामीर रीजन से आए हुए कुछ अफ़गान ट्राइब भी हैं। फिर उनके साथ एक कबीला जनाब अली कोहिस्तान से आया हुआ एक कबीला भी है। यही कबीले काफ़ी अरसे से यहाँ रह रहे हैं। इन कबीलों ने मिलकर, इनसे पहले जो कबीला यहाँ बस रहा था उसकी नस्ल कुशी हुई है। चलें चलें शबीर साहब आप आगे चलें, हम आगे और भी आपको दिखाते हैं इस गांव के खूबसूरत मनाजिर। ये दीवारें देखें साजिद भाई, अपने अंदर इन दीवारों ने क्या कुछ नहीं देखा होगा। इंसानों को यहाँ पर पैदा होते, उनको ज़िंदगी गुजारते, उनको फिर उनकी डेथ होते, इन्होंने ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा यादें समेटे हुए हैं। ये जो दीवारें हैं, ये जो दोस्तों ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये पत्थर, इसका आप साइज़ देख लें और इसकी वेट्स भी देख लें कितना ये बड़ा है। और उस टाइम के इंसान
कितने ज़्यादा वो एक सेहतमंद थे, कितने जुर्रतमंद थे जो ये उठाकर ये दीवारें बनाया करते थे। तो चलें दोस्तों, एक और बड़ा खूबसूरत पॉइंट इस गांव का हम वो दिखाते हैं। हम कोशिश करेंगे दोस्तों आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बचे, हम मुख्तसर इसमें कोशिश करते हैं बात करने की। जी शबीर साहब। तो ये 1 2 3 4 ये चारों मसाजिद हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो हर कबीले की अलग से मस्जिद है। जो पहले हम विज़िट कर चुके हैं वो शेख उस कबीले की मस्जिद थी जो बहुत ही डेकोरेटेड थी। उसके बाद ये सामने जो नज़र आ रहा ये रूपीकुस कबीले की, फिर ये ममरूकुस कबीले की, यरीकुस कबीले की, कुयकुस कबीले की ये मस्जिदें हैं। ये सामने जो रूपीकुस कबीले की मस्जिद है इसके ऊपर जो कार्विंग नज़र आ रहा है इसमें ज़्यादातर आयोनियन आर्ट नुमायाँ है। तो हमारे जो स्टूडेंट बरादरी है उनके इंफॉर्मेशन के लिए ये मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब सिकंदर आज़म हमारे गंदारा में दाखिल हुए उसके साथ 95,000 का लश्कर था। 95,000 में से 35,000 ख़वातीन भी थी। तो 95,000 लश्कर में से ज़्यादातर अफराद का जो ताल्लुक़ था वो यूनान के 3 बड़े कबाइल से था। उनमें से एक कबीला आयोनियन कहलाता था। आयोन कदीम यूनानी ज़बान में बेल को कहते हैं और आयोनियन के मानी बनते हैं बेल वाले लोग या बेल वाला कौम कबीला, क्योंकि बेल उस कौम कबीले का कौमी निशान था। बेल न सिर्फ उस ज़माने में बल्कि आज के दौर में भी मजबूती और ताकत का सिंबल समझा जाता है। इसलिए वो लोग अपने आप को दुनिया के मजबूत तरीन कौम तस्वुर किया करते थे और जहाँ कहीं भी जाते थे अपने कौमी निशान बेल की सींगों की निशानियाँ बनाया करते थे। शबीर साहब मुझे बताएं कि इस टाइम मौजूदा जो है यहाँ पर कितनी गलियाँ हैं इस छोटे से गांव में, और कितनी मस्जिद हैं, कितने घर हैं जो इस टाइम मौजूदा इसकी हालत है? तो इसमें 3 बड़ी गलियाँ थीं, उनके अंदर फिर छोटी छोटी मज़ीद गलियाँ तकसीम होती थीं। उनमें से जो 2 बड़ी गलियाँ आगे दरिया की तरफ सामने के साइड से जाती थी वो तो 1854 में जो बहुत बड़ा सैलाब आया तो उसकी वजह से काफ़ी कट के नीचे गिर गया। फिर उसके बाद KKH का रोड आया, उसकी जद में भी 40-50 घर आ गए। तो सामने की जो लंबी गलियां थी वो तो तकरीबन ख़त्म हो गई, लेकिन पीछे की तो जो गली थी वो अब मौजूद है। अच्छा, ये टोटल घर लकड़ी के बने हुए हैं? जी हाँ, ये मसाजिद टोटल लकड़ी के हैं, लेकिन आम जो घर हैं उनको पत्थर की दीवार है, उसके ऊपर घारे का प्लास्टर है, ऊपर का जो छत है वो लकड़ी का। अच्छा, ये लकड़ी कौन सी इस्तेमाल की गई है उस दौर में? उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि जूनिपर की लकड़ी इस्तेमाल करें, क्योंकि जूनिपर की लकड़ी तमाम लकड़ियों में ज़्यादा लंबी उम्र और मकबूल है। क्योंकि अगर जूनिपर की लकड़ी को अगर आप पानी में रखें या मट्टी में दबा के रखें, जैसे भी रखें, वो सड़ती नहीं है, बहुत सख्त जान है। अच्छा, ये अवार्ड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? यूनेस्को वालों ने 2002 में पहली मरतबा ये वाला अवार्ड हमें अवार्ड से नवाजा। उसके बाद दूसरी मरतबा 2009 में अवार्ड से नवाजा। ये अवार्ड आपके सामने है। ये आपके पाँव के नीचे की जो जगह है यह यहाँ का चौपाल हुआ करता था। चौपाल के बारे में तो आप लोग बेहतर जानते हैं, क्योंकि पंजाब के कदीम ज़मानों में हर देहात में एक चौपाल हुआ करता था। लेकिन इस जगह में जो चौपाल है यहाँ की जो एक्टिविटीज़ थी वो इजाफी ये थी, लगभग 2.5 महीने यहाँ पे म्यूज़िकल प्रोग्राम भी हुआ करता था। पर उस दंगा फसाद के ज़माने में जंगों के अंदर जिनके असलाफ की नुमायाँ कारकर्दगी होती थी और कारनामे होते थे, उसका किस्से कहानी को मंजूम करके उसके ऊपर वो म्यूज़िक तरतीब देते थे। अच्छा शबीर साहब, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं ये किसी ने गांव फतह भी किया? तो हमारे पास किसी ने फतह किया इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बता दें कि यहाँ पर जो लोग आना चाहते हैं उन्हें किस किस्म की एहतियात और किस तरह ये किला आकर देख सकते हैं, ये गाँव किस तरह देख सकते हैं जो 1400 साल पुराना है? जनाब अली, यहाँ पे हर पाकिस्तानी के लिए हम वेलकम करते हैं, लेकिन हमारी पाकिस्तानी कौम में ये एक पैगाम भी है, ये देना बहुत लाजमी समझता हूँ कि हम जहाँ जाते हैं इसी वजह से हम बहुत बदनाम हैं पाकिस्तानी। जहाँ भी जाते हैं हम कचरा बहुत फैलाते हैं। तो हम जहाँ जाएं ये हमारी जहन में बात होनी चाहिए कि यह आपका मुल्क है या आपका इलाका है, इसको गंदा ना होने दें।
اس کو گندگی سے محفوظ رکھیں. گاڑی کی کھڑکی سے کچرے کا تھیلا باہر پھینکنا یہ کسی مہذب انسان کے لیے زیب نہیں دیتا. یہ میں پورے پاکستانیوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو ہم مہذب بنانے کی کوشش ہم کیوں نہیں کرتے. تو جیسے کہ شبیر صاحب نے بہت اچھا پیغام دیا ہے، وہیں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے دین کا یہ حصہ ہے. صفائی نصف ایمان ہے، اور سویلائز جو قومیں ہوتی ہیں وہ کوٹ پہن کر نہیں بنتی، وہ اچھے اخلاقیات، اچھے رویوں سے، اچھی عادتوں سے بنتی ہیں. تو ہنزہ کی طرف سے سب جتنے بھی ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو بھی یہاں پر آئیں تو صفائی کا خاص خیال رکھیں. شبیر صاحب میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا، اور تھینک یو سو مچ. ملک کے بارے میں آپ انفارمیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو جو ہمارے لوگوں کے علم میں نہیں وہ چیزیں ان کے علم میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس ایفرٹ میں آپ لوگوں کا بہت ہی مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ یہ جو اقدام اٹھا رہے ہیں تو یہ پورے ملک کے مفاد میں ہے. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. بہت مہربانی آپ کی. تھینک یو جی. اللہ حافظ.